students, welcome to the online classes of Sri Mahavir International School. I hope you all are fit and fine at your home and also enjoying the online classes of our school. So students, today I am back with my new video and going to teach you chapter number 2 of English literature book Oliver Twist. What is the name of the chapter? Oliver Twist. Before starting the chapter, first we will learn about the author. Who is the author of this story? Charles Dickens. So, first we will learn about Charles Dickens. Charles John Haffon Dickens was born 7th of February 1812 and died 9th of June 1870. He was an English novelist. He is well known for creating some of the best fictional characters and is considered as the leading novelist of Victorian era. चार्ल्स डिकेंस जो थे वो अपने एक बहुत बेस्ट क्रिएशन के लिए जाने जाते थे कि वो अपनी हर स्टोरी के अंदर एक बेस्ट फिक्शनल कैरेक्टर बनाते थे, एक फिक्शनल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते थे जो पूरी स्टोरी में सबसे इम्पोर्टेंट होता था. ये जो ऑथर थे ये लीड करते थे विक्टोरियन एरा को, यानी कि ये विक्टोरियन एरा के टाइम के नॉवेलिस्ट थे. सम ऑफ हिज मोस्ट पॉपुलर नॉवेल्स इंक्लूड अ टेल ऑफ टू सिटीज, अ क्रिसमस कैरल, ओलिवर ट्विस्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एंड डेविड कॉपरफील्ड. Sometimes in the class I raise a question in front of you that what are the other works of this or that author. So you may learn about the other works of Charles Dickens that are A Tale of Two Cities, A Christmas Carol, Oliver Twist, Great Expectations and David Copperfield. In this way beta we will learn about very short note of Charles Dickens. Now we are going to learn about the story of Oliver Twist. Let's start. Oliver Twist is the story of a young orphan boy who lived in England in the 1830. बेटा ओलिवर ट्विस्ट एक यंग ऑर्फन बॉय है. ऑर्फन मीन्स है अनाथ, जिसके पेरेंट्स नहीं हैं, और वो इंग्लैंड में रहता था 1830s के टाइम में. Here is a story from the novel about the early years of his life. In this story, in this part of the story, हम यहाँ पे Oliver Twist की early year की life के बारे में पढ़ेंगे. Before starting the story, let me clear you one thing. What is graphic story? बेटा you can see on the book कि ये जो story है boxes में दी हुई है. इस तरह की स्टोरीज को हम लोग ग्राफिक स्टोरी बोलते हैं, क्योंकि इन स्टोरीज के अंदर आपको कैरेक्टर्स शो हो रहे हैं और आपको ये भी पता चल रहा है कि कैरेक्टर क्या डायलॉग्स बोल रहे हैं. तो जब भी बुक्स के अंदर आपको इस तरह के बॉक्स में विद द कैरेक्टर एंड विद द डायलॉग्स स्टोरी प्रेजेंट होती है, तो इस टाइप की स्टोरीज को हम लोग ग्राफिक स्टोरी कहते हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन द स्टोरी. Oliver Twist was born in a workhouse, but the newborn could barely breathe. Now, the birth of the Oliver Twist can you see in this box, and one major problem faced by Oliver Twist after the birth that he could not breathe properly. So, at the time, the doctor say something to the lady. The baby is barely breathing. I am not sure how it will survive. डॉक्टर लेडी से कहते हैं कि ये जो बेबी है छोटा, ये अच्छे तरह से ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, और अगर ये प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पा रहा है तो मैं श्योर नहीं हूँ कि अपनी लाइफ को सर्वाइव कैसे करेगा. Now come to the next graph. The nanny gave Oliver something which helped him to revive. Okay, at the same place, one old lady was there and she gives something to the Oliver Twist. वहाँ पे एक old lady थी जिन्हें नैनी कहा गया, और वो ओलिवर को कुछ मेडिसिन देती हैं
मेडिसिन जैसा कुछ देती हैं जिससे ओलिवर को रीबर्थ मिलता है. इट मीन्स दैट आफ्टर टेकिंग समथिंग विच वॉज गिवन बाय द नैनी, Oliver Twist rebirth. Now he is able to take a proper breathing. The doctor placed the baby in the dying mother's arm. At the same time, when the newborn baby was suffering from the breathing problem, on the other hand, his mother also having some problem that she was going to die. कि उसी वक्त उसकी जो मदर होती है ओलिवर ट्विस्ट की, वो भी मरने वाली हालत में होती हैं. ठीक है. सो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उस न्यू बॉर्न बेबी को उसकी मदर के आर्म्स में देते हैं एंड एट द सेम टाइम शी किस्ड हिम ऑन हिज फॉरहेड एंड डाइड. जब ओलिवर ट्विस्ट की मदर अपनी आर्म्स में छोटे बेबी को लेती हैं तो वो उसके फॉरहेड पे किस करती है और उसके कुछ समय बाद ही वो मर जाती हैं. Oliver was an orphan from the minute of he was born. Oliver Twist जो होते हैं, ओलिवर जो होते हैं, वो अपने बर्थ के कुछ ही मिनट्स के बाद ऑर्फन हो जाते हैं. ऑर्फन मीन्स a child who do not have his parents. ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते उन्हें ऑर्फन कहा जाता है. So after the death of Oliver mother, doctor having a conversation with the nurse. Do you know where the lady was from? Who is the child? डॉक्टर छोटे बेबी की मदर के डेथ के बाद नर्स से पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो कि ये लेडी और ये बच्चा कहाँ से आए हैं और ये कौन है. द नर्स रिप्लाइड, नो सर, शी वॉज नॉट अ लोकल. वो कहती है कि मैं इन्हें नहीं जानती क्योंकि ये लोग लोकल नहीं है. नाउ सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. एज नो वन न्यू अबाउट हिज फैमिली, the child was covered in a parish robe and sent to a parish. क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वो बच्चा किस फैमिली का है और कहाँ से आया है, तो उस छोटे बेबी को पैरिश रॉब मीन्स है चर्च के जो फादर होते हैं उनके थ्रू जो कपड़े पहने जाते हैं, ऐसे ही एक रॉब में, क्लोथ जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर कवर करके उस बच्चे को पैरिश चर्च सेंड कर दिया जाता है. नाउ देयर ओलिवर वॉज नॉट फीड और टेकन प्रॉपर केयर ऑफ. जब ओलिवर चर्च यानी पैरिश शिफ्ट कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, तो ओलिवर को वहाँ पे ना तो अच्छे से खाना मिलता है और ना ही उसकी प्रॉपर केयर हो पाती है. देयर वॉज नो फीमेल टू नर्स यंग चिल्ड्रन, so he was transferred by parish authorities to a private asylum. Okay, अब क्या होता है, जब वहाँ पे ओलिवर की अच्छे से परवरिश नहीं हो पाती, प्रॉपर केयर नहीं हो पाती, उसे अच्छे से खाना नहीं मिल पाता, तो ओलिवर ट्विस्ट को एक प्राइवेट अजाइलम में सेंड कर दिया जाता है. अजाइलम एक प्लेस होती है जहाँ पे उन लोगों को रखा जाता है जिनके फैमिली मेम्बर्स को उन्हें पता नहीं होता. इट मीन्स asylum is a place where all the orphans live together. Okay, तो ओलिवर ट्विस्ट को पैरिश अथॉरिटी asylum भेज देती है just because there was not a proper care of him, and one of the reason given here that they didn't get a proper care because no female nurse was there. वहाँ पे कोई भी फीमेल नर्स नहीं होती है, इस वजह से वहाँ बच्चों की केयर नहीं हो पाती है, तो ओलिवर ट्विस्ट को पेरिस से अजाइलम सेंड कर दिया जाता है. नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट बॉक्स. मिसेस मन. वन न्यू कैरेक्टर एड्स हियर, दैट वाज मिसेस मन, द केयर टेकर ऑफ द अजाइलम. अजाइलम में केयर टेकर होती है, एक फीमेल लेडी होती है जिनका नाम होता है मिसेस मन. शी वॉज वेरी कनिंग लेडी, बट मिसेस मन जो होती है वो बहुत ही क्लेवर, कनिंग और चालाक लेडी होती हैं. She feed the children very little food to make them studious. ठीक है, studious. उनको वो बहुत ही कम खाना देती है जिससे वहाँ के बच्चे स्ट्रोंगर बने, उनका मानना ये था. बट ओलिवर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा भोले होते हैं. So she just at the same time raised question to the Mrs. Munn. What he say? Please give us something to eat. वो जाकर मिसेस मन को कहते हैं आप हमें कुछ खाने के लिए दें.
इस पे रिप्लाई करती है मिसेस मान, यू हैड इनफ पॉरेज, पॉरेज मीन्स है खिचड़ी, यू हैव इनफ पॉरेज इन द मॉर्निंग, आई कैन नॉट प्रोवाइड यू विद मोर फूड नाउ। वो उस पर गुस्सा होती हैं और उन्हें कहती है कि तुम्हें सुबह बहुत अच्छे से खिचड़ी खाई है, उसके बाद भी तुम्हें फूड चाहिए तो मैं तुम्हें फूड प्रोवाइड नहीं कर सकती। एंड व्हाट शी डिड, वो उन बच्चों पे गुस्सा करती हैं और उन्हें सेलर यानी प्रिजन में बंद कर देती है एज अ पनिशमेंट। इंस्टेड ऑफ गिविंग दैम फूड मिसेस मन बीट दैम अप एंड लॉक दैम इन अ कोल्ड सेलर। वो क्या करती हैं, उन बच्चों की पिटाई करती हैं और उन्हें कोल्ड सेलर के अंदर लॉक कर देती है। तो उसी वक्त एक चेंज आता है ओलिवर की लाइफ में। लेट्स सी व्हाट वाज दैट। वन डे अ चर्च ऑफिशियल नेम्ड डॉक्टर ब्रैम्बल केम टू मीट ओलिवर। उसी दिन चर्च के ऑफिसर्स में से एक ऑफिशियल पर्सन वहां से आता है जिसका नाम होता है डॉक्टर ब्रैम्बल, और वो ओलिवर से मिलना चाहते हैं। आई हैव केम टू टेक बैक ओलिवर वेयर ही वॉज बॉर्न, वी हैव फेल्ड टू ट्रैक डाउन हिज फैमिली सो फार। तो वो उस लेडी को कहते हैं कि मैं ओलिवर को वापस लेने आया हूँ क्योंकि हम इसकी फैमिली को नहीं ढूंढ पाए, तो मैं इसे वापस ही अपने साथ पैरिश लेके जाऊंगा। I will send Oliver to you in a minute. So at the same time, Mrs. Munn also getting much irritated and frustrated by the Oliver. तो वो डॉक्टर ब्रैम्बल को कहती हैं कि मैं आपको जल्दी से ओलिवर से मिलवाती हूँ और आपके साथ भेजने के लिए व्यवस्था करवाती हूँ। सो बेटा, दिस इज अ वे ऑफ you may learn about the Oliver Twist birth and at the time when he shift asylum to the parish. Now come to the next part. Now students, we will learn more about the life of Oliver, that what happened with him after when Dr. Bramble take back to him to the housework or a parish. At the same day, there was a meeting held by the board members. Now what they told to the Oliver? Oliver, you should be grateful for all the blessings and favors you have received so far. Now you need to start earning. You will be picking oakum from tomorrow. अब वहाँ के बोर्ड मेंबर्स वाले लोगों ने ओलिवर से कहा कि अब हम तुम्हें एक चांस दे रहे हैं कि अब तुम अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो और तुम्हारा काम है कि तुम्हें कल से ओकम बेटा एक लूज फाइबर होता है विच रिक्वायर्ड फॉर द ओल्ड रोप, है ना, उसको उठाने का काम दिया गया किसको? ओलिवर को। आई वॉन्डर्ड वॉट आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर। ओलिवर जो है वो थोड़ा खुश होता है क्योंकि उसे कुछ काम करने को मिला और कहीं ना कहीं अब वो ये सोचता है कि काम करने के बाद, अर्निंग करने के बाद अब उसको प्रॉपर फूड और प्रॉपर केयर मिलेगी, तो वो उस काम को बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेता है। नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? ओलिवर टॉयल्ड थ्रू आउट द डे। ओलिवर पूरे दिन बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बट एट द एंड ऑफ द डे ही वॉज बेयरली गिवन एनी फूड। पर एंड ऑफ द डे जब बहुत मेहनत करने के बाद उसे उस दिन फिर प्रॉपर तरीके से खाना नहीं मिलता है। ऑल बॉयज वर फीड एंडिक्वेंटली। एंडिक्वेंटली मीन्स है इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट यानी कि वहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं, जो अदर बॉयज होते हैं, उनमें से किसी भी बच्चे को प्रॉपर एंडिक्वेटली प्रॉपरली फूड नहीं मिलता है। इम्परफेक्ट इट मीन्स जितनी ज़रूरत हो उतना फूड नहीं दिया जाता है। एवरीवन रिमेन्ड डेस्परेटली हंग्री। वहाँ के सारे जो अदर बॉयज़ होते हैं वो सब बहुत ही ज़्यादा भूखे होते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर फूड नहीं मिलता है। वो लोग पूरा दिन बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, अकॉर्डिंग टू हार्डवर्क उनको उस तरह की डाइट अवेलेबल नहीं होती है। तो वहाँ पे अब ओलिवर का अदर बॉयज़ के साथ कॉन्वर्जेशन होता है। व्हाट वाज दैट? दिस कैन नॉट गो ऑन, वी कैन बेयरली सर्वाइव विद दिस अमाउंट ऑफ फूड। ओलिवर कहता है क्योंकि वो जो मेहनत कर रहा है वो फूड के लिए ही कर रहा है, तो वो अपने एक फ्रेंड से कहता है कि मैं इस खाने के साथ, इतने कम अमाउंट के खाने के साथ सर्वाइव
नहीं कर सकता। तभी उसमें से एक बॉय उससे कहता है, ओलिवर यू आर द बोल्डेस्ट अमंग अस। वो कहता है कि ओलिवर तुम हम सब में से सबसे ज़्यादा बोल्ड हो। यू शुड स्पीक टू द वर्क मास्टर। क्यों ना तुम हमारे जो वर्क मास्टर हैं उनसे फूड रिलेटेड, जो हमारी रिक्वायरमेंट है फूड को लेके, जो हमारी नीड है उसके बारे में बात करो। ओलिवर मीट द वर्क मास्टर। एट द सेम टाइम जब अदर बॉय उसे कहता है कि तुम और ज़्यादा फूड की डिमांड कर सकते हो वर्क मास्टर से, तो ओलिवर वर्क मास्टर के पास जाता है। प्लीज़ सर आई वॉन्ट सम मोर फूड। वो बड़े ही प्यार से वर्क मास्टर को कहता है, क्या आप मुझे और फूड प्रोवाइड करा सकते हैं? एट द सेम टाइम द वर्क मास्टर गेटिंग मच एंग्री। हाउ डेयर यू आस्क फॉर मोर फूड, आई विल कंप्लेन अबाउट यू टू मिस्टर बम्बल। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और खाना मांगने की, मैं तुम्हारी कंप्लेन मिस्टर बम्बल को करूँगा कि तुम और ज़्यादा खाने की डिमांड कर रहे हो। At the same time, again Oliver Twist was very disappointed that he didn't get proper food or proper care in his life. Subsequently means here after some time, Oliver was beaten up and put to the jail. जब वापस वो खाने की और डिमांड करता है तो उसकी वहाँ पे पिटाई की जाती है और उसे वापस से जेल में बंद कर दिया जाता है एज अ पनिशमेंट। द बोर्ड, इट मीन्स द बोर्ड मेंबर put out a poster offering 5 pounds to anyone who would accept Oliver as an apprentice. Apprentice means here a person who learn a trade from a skilled employer having agreed to work for a fixed period at law stage. यानी कि जो बोर्ड मेंबर होते हैं वो ओलिवर को तो प्रिजन में बंद कर देते हैं, जेल में बंद कर देते हैं और न्यू पोस्टर पब्लिश कराते हैं कि ओलिवर की जगह कोई दूसरा पर्सन आके इस जॉब को हायर करे। दे कुडंट वेट टू गेट रिड टू हिम एट द अर्लीस्ट। वो बहुत ही जल्दी उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे ओलिवर ट्विस्ट से, क्योंकि ओलिवर ट्विस्ट मेहनत तो करता था पर अपने मेहनत के बदले वो प्रॉपर फूड चाहता था। बट जो वर्क हाउस के लोग थे, बोर्ड मेंबर्स थे, उन लोगों ने उसके ज़्यादा खाना मांगने के बजाय उसकी पिटाई करी, उसको खाना नहीं दिया और उसको जेल में बंद कर दिया और सेम डे ही पोस्टर पब्लिश करा दिए कि उसके बिहाफ पे कोई और आके जॉब कर सकता है। सो बेटा यू कैन सी द अर्ली लाइफ ऑफ ओलिवर ट्विस्ट वॉज वेरी डिफिकल्ट, दैट व्हेन ही वॉज बोर्न एट द सेम टाइम ही गॉट ऑर्फन। In a childhood, he didn't get any proper care or a food for getting grow. When he started his working or earning, that time he also not got a proper food. So the whole early life of Oliver Twist was very difficult for the surviving. I hope you understand the story. You read the story twice, find the hard words and write them in your notebook. Beta, if you have any query, write it in a comment box and send it to me. Okay, bye bye. Have a nice day.